Evening students. So I hope the previous video lecture is clear to you. Now we are moving to the last topic of our chapter, that is evaporation. So let us revise previously what we have studied in this chapter, what topics we have covered. We have started with the chapter by classifying what is matter. Then we have seen the characteristics of particles of matter. There were four characteristics of particles of matters, that particles of matter are very small. Second, the particles of matter particles of matters have space between them. Next, particles of matters attract each other and the particles of matters are continuously moving. Then we have seen the physical states of matter, that matter has been classified as solid, liquid or gases. Next, we have studied the properties of solid, properties of liquid, properties of gases. Then we have seen, can matter change its state? Yes, matter can change its state by two properties, that is by lowering or decreasing the pressure, by increasing or decreasing the temperature. Next, we have studied effect of temperature and effect of your pressure. Under effect of temperature and effect of pressure, we have learned some terms that should be very that you should revise it properly and that should be fitted in your mind with the concept cleared. Okay, so now the next topic, that is the last topic, evaporation. Now what is evaporation? आपके माइंड में ये वर्ड पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, ये इवोपरेशन सुनने के बाद आपके माइंड में क्या आया? सबसे पहली चीज़ क्या आई? इवोपरेशन मतलब कुछ समझ आया? इवोपरेशन इन द सेंस द प्रोसेस एट विच liquid starts converting into gaseous below its boiling point. What is evaporation? The process at which liquid starts converting into vapors below its boiling point, that is known as evaporation. So evaporation is nothing but when a liquid is left exposed to air, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस. अगर हम कभी कोई लिक्विड को एक्सपोज करें एयर के प्रेजेंस में तो वो लिक्विड की वॉल्यूम डिक्रीज होती है. दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग द इवोपोरेशन process, the liquid at the surface turns into vapor and mixes into the gas in the air. So this process is known as evaporation, or you can say the process in which liquid starts converting into vapors at temperature below its boiling point is called evaporation. ठीक है, evaporation is a type of surface phenomena. सरफेस फिनोमिना इन द सेंस सरफेस पे जो लिक्विड होता है वो एयर के कांटेक्ट में आता है और वो लिक्विड के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स में वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में कि व्हेन यू प्रोवाइड द हीट the liquid starts converting into vapors. Okay, so surface, it is a type of surface phenomena. surface का liquid evaporate होगा, bulk का liquid evaporate नहीं होगा. for example in an open sea के ऊपर का surface का liquid evaporate होगा. ठीक है, क्योंकि वो surface पे heat पड़ रही है, पूरा heat नीचे depth तक नहीं जा रहा है. ठीक है, so remember, क्योंकि boiling point का definition भी almost same है, the process at which liquid starts into changing into vapors, but वहाँ पे at its atmospheric pressure, and boiling point is a type of bulk phenomena, whereas evaporation is a type of surface phenomena. ठीक है, for example evaporation का best example आप घर पे देख सकते हो, drying of wet clothes. वेट क्लोथ्स ईजिली ड्राई हो जाते हैं. अभी हमारे थोड़े टाइम पहले, अभी बारिश हो रही है बट इनिशियली 2-3 दिन पहले हमारा समर्स का टाइम बहुत ज़्यादा हीट थी, तो इनिशियली अगर मम्मी कपड़े धो के बाहर डाल रही थी तो वो ईजिली 2 या 3 घंटे में ईजिली ड्राई अप हो जा रहा था, बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा था, तो उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से ईजिली इवापोरेट हो जाते थे. अब ये फैक्टर्स है जो इवापोरेशन के, जो हम आगे स्टडी करेंगे. तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन अगर आपको पूछा जा रहा है तो ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवापोरेशन ऑफ सी वाटर collected in shallow lagoons by the heat of the sun. Collection of sample water, the sea water, you can easily see. अगर आप दमन साइड जाते हो, ठीक है, तो ये रास्ते में आपके इस साइड पे कलेक्शन ऑफ सी वाटर होता है. ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करना. नेक्स्ट, दिस इज द टाइप यू कैन सी ओवर योर इवापोरेशन एज एट. सो आपके एटमोसफेयर में जो इवापोरेशन प्रोसेस हो रहा है, सन है, सन हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. ओशंस या फिर वाटर जो हमारे सीज है उसके जो लेयर है, इनिशियली ऊपर से देखो इवापोरेशन प्रोसेस वार्म होता है और धीरे धीरे इवापोरेशन स्टार्ट हो रहा है एंड राइजिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन दैट टेक प्लेस अवर नेचुरल प्रोसेस. ओके,
नाउ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इवोपरेशन, मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया है व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग इवोपरेशन. ड्यूरिंग इवोपरेशन वाटर टर्न्स फ्रॉम अ लिक्विड टू गैसियस स्टेट. क्या चेंज हो रहा है, वाटर आपका लिक्विड से गैसियस स्टेट में, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है. वाटर मूव्स फ्रॉम द रिवर्स एंड द लेक्स इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. दैट वाटर वेपर धीरे धीरे राइज हो रहा है, तो वो क्या बना रहा है, क्लाउड बना रहा है, एंड वाटर चेंजेस इनटू सॉलिड. ओके, नाउ दिस आर द सर्टेन एग्जाम्पल इवोपरेशन ऑफ वाटर. जैसे इसमें टी लिया हुआ है इस कप में, तो टी में से सरफेस एरिया में से धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से वो धीरे धीरे इवोपोरेट होकर स्टार्ट हो रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स. क्योंकि टी है, टी लिक्विड स्टेट में है और उसका टेम्परेचर हाई है इनसाइड, तो दैट कंसिस्ट ऑफ वो लिक्विड को धीरे धीरे उसके सरफेस एरिया से क्या करेगा, इवोपोरेट करेगा एंड रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर. नेक्स्ट, एज आई सेड यू एग्जाम्पल, गेटिंग द सी वाटर से हमको सॉल्ट ऑब्टेन करना, दिस इज नोन एज डेल्टन्स ऑफ लगून्स. ओके, तो क्या कर रही है आदमी, धीरे धीरे हीट जो जनरेट हो रही है ऊपर सरफेस एरिया पे क्या हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सॉल्ट को वो सेपरेट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग द हीट समर टाइम. सो दिस इज नोन एज इवोपरेशन. होप इवोपरेशन क्या होता है वो आपको क्लियर है. अब कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, इवोपरेशन और बॉइलिंग पॉइंट सेम ही है क्या, ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इज नॉट सेम एज दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिमेंबर दैट. Now this is the difference between evaporation and boiling. Both involves the change of state from liquid to gases. दोनों में, evaporation और boiling में दोनों में change होता है liquid to gases. But both process absorbs heat also. Both the process absorbs heat also. But it occurs at surface. ये सिर्फ सरफेस फिनोमिना है. दिस इज़ अ बल्क फिनोमिना थ्रू आउट द लिक्विड. ये थ्रू आउट द लिक्विड बॉइलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है. इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बिलो द लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट्स. मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स के लिक्विड होंगे ना, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी टेम्परेचर पे अकर करेगा. बट इट अकर्स एट लिक्विड्स बॉइलिंग पॉइंट ओनली. बॉइलिंग कब बोलेंगे, जब वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा तभी. जैसे वाटर हमारा रूम टेम्परेचर में रखा है, तो क्या वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, नहीं. व्हेन इट कम्स टू 100 डिग्री सेल्सियस देन ओनली इट स्टार्ट्स टू बॉइलिंग. सो आई होप बॉइलिंग और इवोपरेशन के बीच में आपको डिफरेंस और सिमिलैरिटीज पता चल गई. तो एग्जाम में आपको अगर पूछेंगे व्हाट इज द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन, यू शुड नो. Okay, now next topic is factors affecting evaporation. So what are the factors that affects evaporation? There are 4 factors which affect the evaporation, that is temperature, surface area, humidity and wind speed. क्या है वो 4 factors? Temperature, surface area, humidity and your wind speed. These are the 4 factors. Now you know temperature, so let us start the very first one, that is temperature. So what is the role of temperature for the rate of evaporation? माइंड में आएगा टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, हाई. सो द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. दैट इज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज बाय हीटिंग इट. टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, बाय हीटिंग इट. सो मोर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है, दे गेट मोर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उसमें, तो काइनेटिक एनर्जीज to go into which state, vapor state. They get more energy, kinetic energy, to go into vapor state, that is gaseous state. So this increases the rate of evaporation. Okay, as if यहाँ पे भी देख सकते हो आप. This is also affected by temperature. As the temperature of air is increased, its capacity to hold the moisture also increases. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एयर में, तो उसकी कैपेसिटी मॉइस्चर होल्ड करने की भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है लिक्विड का. So the rate of evaporation of liquid can be increased by heating. So hence evaporation is directly proportional to temperature. That means more the temperature, more is the rate of evaporation. Okay. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 बाउल्स लिए हैं, इसमें लिक्विड लिया है, इसमें भी लिक्विड लिया है, इसमें भी लिक्विड लिया है. तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे लाइट रखा है, तो लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है ना. तो ये हीट एनर्जी डायरेक्ट इस पर फॉल करी, तो उसका रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या है, 3 टाइम एरोज दिखा है. तो मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन फास्टर है. यहाँ पे 2 ही टाइम्स दिखा है और यहाँ पे लाइट का सोर्स भी नहीं डाल रहे, तो मतलब इसका रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है, लो. समझ में आया. नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी. नाउ व्हाट इज ह्यूमिडिटी?
ह्यूमिडिटी क्या होता है? द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन अवर एटमोसफियर. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द मॉइस्चर कंटेंट दैट इज प्रेजेंट इन अवर एटमोसफियर. The amount of water vapor present in the air is represented by the term called humidity. So, when the amount of water vapor present in the air is when the amount of water vapor present in the air is small, the air appears to be dry. ठीक है. But जब ज़्यादा है water vapor, amount of water vapor in air is large, so the air appears to be humid. फॉर एग्जाम्पल अभी का टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर आपको कैसा लग रहा है? ह्यूमिड लग रहा है कि ड्राई लग रहा है? मॉइस्चर कंटेंट है ना, वाटर का कंटेंट, वाटर वेपर्स का कंटेंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, आपको ह्यूमिड ठंडा लग रहा है ना क्लाइमेट. सो दिस इज द ह्यूमिड क्लाइमेट. वाटर दिस क्लाइमेट इज नोन एज ह्यूमिड क्लाइमेट बिकॉज द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर. सो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, when the humidity is more, rate of evaporation is less. क्या आज कपड़े आपके डायरेक्ट सूख गए? अगर मम्मी ने कपड़े धो के डाले थे तो क्या वो सूख गए? नहीं, मम्मी ने अंदर रस्सी बांधी होगी ना ताकि कपड़े अंदर सूखे, क्योंकि और वो फास्टर नहीं सूखेंगे, फ़ैन के नीचे सुखाने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन, कपड़ों में से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इजीली इवापोरेट नहीं होगा. समझ में आया? सो व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, then the rate of evaporation is high and the water evaporates more readily. Whereas when the humidity of air is high, the rate of evaporation is low and the water does not evaporate easily. For example, यहाँ पे देखो ये लोग ने क्लोज कंटेनर रखा है, तो क्लोज कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो है. और ये ओपन रखा है तो इसमें ह्यूमिडिटी क्या है? कम है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है? फास्टर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज विंड स्पीड. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज विंड स्पीड? अगेन द रेट, विंड ऑफ स्पीड मतलब द रेट ऑफ evaporation of liquid increases with the increase in wind speed. How? Because when the speed of the wind increases, the particles of water vapor move away with wind. क्या होता है इसमें? जब विंड की स्पीड बढ़ रही है तो जो पार्टिकल्स है आपके वाटर वेपर के वो विंड के साथ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं. सो बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन. ओके, क्या होता है जब हम लोग कपड़े वॉश करके डाल रहे हैं, द वॉश्ड वेट क्लोथ्स ड्राई more quickly on windy day. क्यों? बिकॉज इवापोरेशन इज फास्टर ड्यू टू द हाई स्पीड है तो वाटर मॉलिक्यूल को ईजिली अपने साथ इवापोरेट कर रहा है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा? फास्टर होगा, क्योंकि वाटर वेपर आपके उन कपड़ों में स्टिक नहीं होगा, वो विंड स्पीड के साथ भाग जाएगा. ठीक है. सो द इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द विंड स्पीड एज वेल. So when the winds are light, a thin layer of air just below above the surface gets nearly saturated. That is, under these circumstances, the difference between the vapor pressure between the ground and the air is very small. So this results in very low evaporation. Whereas on the other hand, when the wind speed velocity is high, तो turbulence होता है, उसकी वजह से moisture content vaporize जो अर्थ और लेवल के बीच में होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है. क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ वन, सरफेस एरिया. सो मोर द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ इवापोरेशन. ठीक है. सरफेस एरिया जितना ज़्यादा, रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ज़्यादा. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है. If the surface area of liquid is exposed to air is increased, the rate of evaporation is increased. For example, if I say, if say same liquid is kept in a test tube in a china dish, then the liquid kept in the china dish will evaporate more readily because surface area is more. अगर मैं आपका बाउल ले रही हूँ, जैसे यहाँ ही एग्जांपल दिया, इसको देखो, यहाँ पे बाउल में रखा है, बाउल के अंदर, यहाँ बाउल के बाहर गिर गया है, तो बाउल के बाहर गिर गया मतलब उसकी सरफेस एरिया क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, तो पार्टिकल्स इजीली इवापोरेट्स हो सकते हैं. बट यहाँ पे क्या हो गया? सरफेस एरिया कम, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम. Okay, again that is the rate of evaporation of liquid can be increased by increasing the surface area. So I hope this all four factors affecting is clear to you, because they directly ask in exam, write the factors affecting evaporation and explain them. ठीक है. और इसके बेसिस पे, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड के बेसिस पे क्वेश्चन भी होते हैं. फॉर एग्जांपल, ये एक क्वेश्चन है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन कप? कौन सा फैक्टर? सरफेस एरिया ना. मतलब क्या बोल रहे हैं? हॉट टी या मिल्क आपको दिया है तो आप सॉसर मतलब प्लेट, और कप, तो आप किस में से ज़्यादा ईजिली जल्दी पी सकते हो?
सॉसर में से ना, प्लेट में से, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा. ओके, नेक्स्ट. So I hope the factors affecting evaporation and the evaporation part is clear to you. Now there is a topic related to evaporation. Does evaporation causes cooling or cooling caused by evaporation? Now how is cooling caused by evaporation? अगर evaporation process हो रहा है तो आपको cooling कैसे हो सकता है? अभी ये वाला topic हमने we have already studied that whenever liquid evaporates, it must be supplied the latent heat of vaporization. Okay, it has supplied whenever liquid starts converting into gaseous, वहाँ पे latent heat of vaporization होगा कि नहीं होगा? What is latent heat of vaporization? The amount of heat energy required to convert 1 kg of liquid into gaseous at its atmospheric pressure below its boiling point. This is known as latent heat of vaporization. So the cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it draws या फिर or takes the latent heat of vaporization from anything when it touches. Okay, so this is a concept related to it. So how does evaporation causes cooling? For example, in an open vessel, the liquid keeps on evaporating. अगर open vessel है तो liquid surface phenomena वो हमें दिखता नहीं है, but वो process हो रहा है, ठीक है. So continuously वो evaporate होता जाएगा certain moment of time के बाद. So the particles of the liquid क्या करता है, जो हमारे heat energy absorbs the heat energy from the surrounding. The particles of the liquid absorbs the heat energy from the surrounding to regain the energy lost in the evaporation. मतलब जो जब evaporation हो रहा है, so उसके particles क्या करते हैं, आपके atmosphere से energy absorb करते हैं, और जब वो absorb करते हैं, this absorption of energy from the surroundings make the liquid cool. That is why evaporation causes cooling, because of the fact of latent heat of vaporization. Okay. Now, there are certain examples given in your textbook. The first cooling effect of evaporation. When we apply perfume or alcohol to our body, we feel cool. समझ में आया? जब भी परफ्यूम या अल्कोहल आप बॉडी में अप्लाई करते हो तो कूल फील करते हो, बिकॉज परफ्यूम अल्कोहल इवापोरेट ईजिली एंड टेक्स द एनर्जी फ्रॉम अवर बॉडी. तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वजह से आपको क्या करते हैं, कूल फील करते हैं. नेक्स्ट, कूलिंग ऑफ डिओड्रेंट ऑन हैंड. अगर आप आज ही डिओड्रेंट हैंड में थोड़ा सा लगा के देखोगे, आप कूलिंग पाम में, आपके जो हाथ के पाम होते हैं वहाँ पे लगाओगे तो आपको कूल फील करेगा. या फिर आप नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन अप्लाई करोगे तो भी आपको कूल फील करेगा. क्यों? क्योंकि जब वो लिक्विड आपके पाम में प्रोवाइड कर रहा है तो आपके पाम से वो क्या कर रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, क्योंकि वो ऑपरेशन के टाइम पे उसने अपना कुछ ना कुछ एनर्जी लूज़ किया, तो वो एनर्जी क्या करेगा, वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा एंड उसकी वजह से आपको कूल फील होता है. सो व्हेन परफ्यूम इज पुट ऑन योर पाम, इट फील्स cold because particles of matter gain energy from the surrounding or from your palm and evaporates at a faster rate, causing our palm to feel cooled. तो एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन होगा, व्हाई डज अवर पाल्म्स फील कोल्ड, वो ब्लू लाइन क्वेश्चन है, तो अभी उसका आंसर ये है. ओके, नेक्स्ट, वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट. अभी समर्स के टाइम पे अर्थन पॉट्स बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि उसके पानी ठंडा होता है. तो अभी कभी अपने अर्थन पॉट अगर घर पे होगा तो देखा होगा, मटका बोलते हैं उसको, मिट्टी का बना होता है, तो वो ठंडा रहता है. बाहर से उसमें आपको छुओगे ना तो हमेशा ठंडा ठंडा लगेगा, लिक्विड सेंसेशन होगा. क्यों? बिकॉज व्हाट हैपेंस, वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट्स बिकम कूल आफ्टर सम टाइम बिकॉज देयर आर टाइनी होल्स प्रेजेंट इन द पॉट, so which helps them to evaporate and due to this water becomes cool in a short period of time. Okay, next, cooling effect of evaporation. So when we easily catch a cold when we are wet. अभी बारिश के टाइम पे भीगोगे तो आपको क्या लगेगा, ठंडी लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर आपको जब समर टाइम्स में आप पूरा स्वेट करोगे तो वो भी हम पढ़ेंगे. सो एज वी ड्राई आउट, लेटेंट हीट इज टेकन फ्रॉम अवर बॉडी. सो इफ इट इज़ विंडी वी कूल डाउन इवन मोर, क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा. इवन स्वेटिंग होता है समर्स के टाइम पे, तब भी हमको कूल फील होता है. सो व्हेन वी आर हॉट, वाटर इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी स्किन. सो एज दिस वाटर इवापोरेट्स, इट्स कूल्स आवर स्किन. समझ में आया? So this was the factors. Drying of clothes is again, it causes cooling. Evaporation of water from wetting clothes is encouraged. Okay. Now they ask you this also कि which type of clothes you should prefer in summers. Cotton clothes, because cotton is a very good absorber of heat.
Okay, so I hope the factors affecting evaporation and how does evaporation causes cooling, किसकी वजह से cooling होता है, मेन इस फैक्टर की वजह से याद रखना है आपको, ये फैक्टर की वजह से, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिलेट करता है उससे, इसलिए. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक एक आप पढ़ोगे, देर आर टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर जिस पे काम चल रहा है, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन. साइंटिस्ट नाउ सेट्स दैट देर आर 4 states, actually 5 states, that is solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. Now, what is plasma? Plasma is nothing but a mixture of free electrons and ions, that is number of positive and negative ions when the particles exits in super energetic and super excited state is called plasma. For example, they say that plasma occurs naturally in the stars में होता है plasma, चमकता है ना जो खुद से अपना light को radiate करता है. तो इसमें what does they say, including the sun also, okay, what does this say? Scientist says that the inside the stars the temperature is so high that the atoms break up and some of the electrons break up from the atoms, converting the rest of the atoms into electrically charged particles called ions, and this mixture of free electrons and the ions in the star is called plasma. ठीक है, इसलिए द सन एंड द अदर स्टार्स ग्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देन. ये देख सकते हो आप, ऐसा ग्लो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा. ये जो पिक्चर है ये ग्लास कंटेनर की इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लाज्मा की. ओके, सो प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी मेड ऑन द अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस. कैसे बनाते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को, गैसेस से पास करते हैं और प्लाज्मा क्रिएट करते हैं एट अ वेरी लो प्रेशर. ओके, इन अ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब. दिस इज वे वी प्रोड्यूस इट. फ्लोरेसेंट नियोन सिग्नल जो लाइट्स होती है वो भी प्रोड्यूस करती है, दैट इज नथिंग बट दे कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, ग्लास ट्यूब, उसमें गैस फिल करते हैं और उसका प्रेशर बहुत लो करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो लाइट्स जनरेट करती है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा. नाउ व्हाट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन? इन 1920 an Indian scientist called Satyendra Nath Bose did some calculation for the 5 states of matter. On the basis of this calculation, Albert Einstein predicted the existence of new states of matter called Bose-Einstein condensate. So the 5th state of matter is called Bose-Einstein condensate. For example, इसमें 1 marks क्वेश्चन, इसमें डिटेल में आपको कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ डायरेक्ट Bose-Einstein condensation का फुल फॉर्म पूछा जाता है. What is the full form of BEC? Was finally achieved by 3 scientists, that is Cornell, Catlett and Weiman by USA by cooling a gas. What they have done, they have cooled a gas with an extremely low density, about 100,000 the density of the normal air, to super cool temperature, low temperature. So this was the condensation. अब Bose-Einstein condensation पे और भी काम चल रहा है. Okay, now plasma is nothing but plasma is a sun in stars due to the high temperature, and CF free tube glass में भी आप देख सकते हो because of the plasma state. So this was all about the chapter. I hope the chapter is clear to you. अभी आप क्या करोगे, आप एक्सरसाइज क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे और जो ब्लू लाइन क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द chapter, you can ask me. Okay, thank you.